Good morning, everyone. First, I would like to congratulate you for your grand successes in the examination. But I want to remind कि if you are not successful, then don't demotivated. Please don't be demotivated. क्योंकि it is only your semester examination and you don't have to take it very seriously. We have to do so many things, and if you are facing any problem regarding your study, regarding your conception, then please inform us. We will try to help according to our best capabilities, right? So just don't be over excited and don't be over demotivated. ठीक है? So let us start DC machine armature winding. अगर टाइम मिलेगा on some other day, I will share my experiences and stories with you, and that is very much interesting regarding this success and failure in the examination. ठीक है? Now DC machine winding यानी armature winding डिस्कस करना है. From my experience, पहले हमने देखे थे कि इन द मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट को आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में समझ नहीं आता है. वो लोग क्या करते हैं, देयर आर सम फैक्ट्स जैसे कि पैरेलल पाथ कितना होगा, पोल पिच कितना होना चाहिए, कम्यूटेटर सेगमेंट कितना होना चाहिए. दे जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट and don't even understand what is a parallel path, how the current flows. That is why अगर common questions आएगा, common numericals होगा, they can able to solve. But if in a standard examination like GATE, ESE और SSC junior engineer examination, जहाँ पे वो लोग कुछ चेंज करके मॉडिफाई करके न्यूमेरिकल्स देगा, at that time you will not able to solve. I think in GATE 2015 there was a question from the DC machine. Question was very simple, but they mentioned कि brass voltage is suppose 2.4 volt ऐसा कुछ था. तो सभी का कॉमन गलती क्या हुआ था कि दो ब्रास रहता है, सो दो से मल्टीप्लाई करना चाहिए था. सो इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन. So I would like to request you to understand it clearly, and so I am giving so much time in DC machine construction. Now see this diagram. There is armature slot. Now this is slot. It can be of single layer or double layer. Double layer में दो layer रहेगा. First, second, layer 1, layer 2. In between there will be separator. And obviously there will be insulator between two conductor or between two layer there will be obviously insulation. हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि इंसुलेशन मतलब हम लोग वायर को पहले बाउंड करते, देन हम लोग एस्फॉल्टम में इमर्स करते एंड देन प्लेस इन द स्लॉट. तो इन द लार्जर मशीन और मीडियम मशीन हम लोग ऐसे 1, 3, 5, 7 मतलब टोटल 8 नंबर्स ऑफ कंडक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं. मतलब लेयर 1 में फॉर दिस ओनली 1 and 2 दो कंडक्टर होगा, एंड हियर मैक्सिमम 8 नंबर तक हम लोग कंडक्टर ले सकते हैं. एंड द विंडिंग रूल इज ऐसे नेमिंग करना होगा. एंड कंडक्टर का दो साइड है, लेफ्ट एंड राइट, स्टार्टिंग एंड एंड. तो स्टार्टिंग अगर ऊपर से होगा तो एंड नीचे होना चाहिए. ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस स्टार्ट द आर्मेचर वाइंडिंग. सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आर्मेचर वाइंडिंग. देन हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार की होती है और व्हाट आर द बेसिक रूल्स वी विल अंडरस्टैंड, राइट. सो पहले कुछ करने से पहले रूल्स जानना ज़रूरी होता है. हम लोग डिस्कस किए थे ना, if you understand the rule well then you can play the game well. So I am erasing this. You have to again imagine. Imagination is the key to understand a rotating machine. Now just understand. Let me take blue color, red color. Okay,
Now winding मतलब there will be series connected coil मतलब there will be series connected turn मतलब there will be series connected conductor. So essentially I have to place the conductor को रखना है, कहाँ पे रखेंगे? In the armature slot. So let us place one conductor here. Can you see this red color? Now this conductor will be connected with another one by connector, and then it will make a turn. So this is one conductor, second conductor, one conductor, second conductor. With the help of connector एक साथ में ज्वाइन करेंगे, एंड इधर अगेन एक कनेक्टर होगा, एंड फाइनली इट विल बी कनेक्टेड इन द कम्यूटेटर सेगमेंट. सो कम्यूटेटर सेगमेंट में कैसे कनेक्टेड होगा वो डिपेंड करते हैं कम्यूटेटर पिच के ऊपर. मतलब कम्यूटेटर में डिफरेंट वाइंडिंग्स के लिए डिफरेंट रूल्स है. जैसे कि अगर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग लेंगे तो एडजेसेंट दो कम्यूटेटर सेगमेंट में कॉइल का दो एंड ज्वाइन होगा. डुप्लेक्स लेंगे तो एक बाद होगा, मतलब सपोज इधर होगा, देन एक मिडिल में एक हम लोग छोड़ देंगे, देन नेक्स्ट इधर होगा. सिंपली वेव वाइंडिंग के लिए देयर आर डिफरेंट रूल्स, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे. सो माय पॉइंट इज इन द स्लॉट ऐसे मेरा कॉइल और टर्न और कंडक्टर हम लोग प्लेस करेंगे. नाउ व्हाट इज द बैक साइड एंड व्हाट इज द फ्रंट साइड ऑफ द आर्मेचर. सो इधर कम्यूटेटर शाफ्ट कनेक्टेड है विद द एक्सटर्नल सर्किट. सो दिस इज कॉल्ड फ्रंट साइड, जहाँ पे कम्यूटेटर कनेक्टेड होगा, एंड दिस इज कॉल्ड बैक साइड. ओके, सो इधर जो भी कनेक्शन और डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम द फ्रंट साइड, जहाँ पे आर्मेचर एंड कम्यूटेटर एक साथ में रहेगा, कनेक्टेड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट पिच, एंड इधर बोलेंगे बैक पिच. सो ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आर्मेचर वाइंडिंग. सो कैन आई इरेज दिस डायग्राम? यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू इमेजिन, क्योंकि इसके बाद जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट ये वाला पिक्चर माइंड पे रखना. ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली. ऐसे कम्यूटेटर स्लॉट में कंडक्टर होगा एंड इट विल बी कनेक्टेड इन द कंडक्टर होगा एंड इट विल बी कनेक्टेड विद द कम्यूटेटर सेगमेंट. इधर हम लोग बोलेंगे आर्मेचर स्लॉट एंड कम्यूटेटर सेगमेंट. ठीक है. सिमिलरली दो स्लॉट के बीच में एक टीथ रहता है, इधर दो सेगमेंट के बीच में इंसुलेटर रहता है. ओके, सो अगर खोल के ड्रॉ करेंगे तो कम्यूटेटर को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो देयर विल बी कम्यूटेटर सेगमेंट लाइक दिस, एंड दिस इज नथिंग बट इंसुलेशन सेपरेशन. माइका इंसुलेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर कम्यूटेटर स्लॉट. कम्यूटेटर slot नहीं segment, and this is armature slot. सो आर्मेचर के टाइम पे हम लोग बोलेंगे स्लॉट, कम्यूटेटर के टाइम पे हम लोग बोलेंगे सेगमेंट. नाउ लेट अस डिस्कस आर्मेचर वाइंडिंग. सो लेट मी इरेज इट. Before starting armature winding, we have to know some term. First is conductor, turn and coil. ये जो तीन टर्मिनोलॉजी है इसको ठीक से समझना होगा. सो कंडक्टर कहाँ पे होगा? इन द आर्मेचर स्लॉट. किसके साथ कनेक्टेड होगा? विद द कम्यूटेटर सेगमेंट. So keep a heading, basic terminology for armature winding.
सो पहले देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर, टर्न एंड कॉइल। Now if I try to draw the armature slot, so let me draw like this. Okay, now just imagine with the previous diagram, ऐसे मेरा आर्मेचर स्लॉट होगा। कैन यू इमेजिन दिस? एंड इनसाइड द स्लॉट हम लोग ऐसे कंडक्टर प्लेस करेंगे एंड दिस कंडक्टर will be connected with commutator segment. Now just think about a single turn. एक टर्न कैसे हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे? बाय कनेक्टिंग द कंडक्टर। सो एसेंशियली अगर इफ इट इज ए टर्न, so how it is made? सपोज दो एडजेसेंट सेगमेंट में कनेक्टेड कर दे, दो एंड हम लोग दो एडजेसेंट सेगमेंट में कनेक्ट कर दे। सो दिस इज कंडक्टर मटेरियल वाइज, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर। सो कंडक्टर एज ए मटेरियल अगर देखेंगे तो कंप्लीट टर्न इज मेड आउट ऑफ कंडक्टर। ओके, लेकिन हियर इन आर्मेचर वाइंडिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ टर्न, जहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक पोल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर? मतलब दो कंडक्टर, दिस इज वन कंडक्टर एंड दिस इज अनदर कंडक्टर, जहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्लस एंड माइनस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एंड जो सीरीजली कनेक्टेड हो करके एक टर्न बनाते हैं, इसको कहते हैं कंडक्टर। सो कंडक्टर मीन्स the effective length of a turn where induced EMF is produced and which is under the influence of magnetic field is termed as conductor. सो व्हाट इज कंडक्टर इन आर्मेचर वाइंडिंग? समझ में आ गया? दो कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होकर के एक टर्न बनाएगा। नाउ इन ए टर्न देयर मे बी देन ऐसे एक, दो और मल्टीपल नंबर्स ऑफ टर्न एक साथ में सीरीज में कनेक्ट होकर के जो बनाएगा, दैट इज कॉइल। So what is coil? Suppose this is a turn
as a 3 turn, this is 1 turn, this is 2 turn, second turn, this is 3, ऐसे 3 टर्न एक साथ में कनेक्टेड हो करके जो होगा दैट विल बी कॉइल. सो दिस इज कॉल्ड मल्टी टर्न कॉइल. इधर 3 टर्न कॉइल. सो अगर एक ही टर्न रहेगा इन ए कॉइल देन इट विल बी कॉल्ड सिंगल टर्न कॉइल. सो कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होके होगा टर्न, टर्न सीरीज में कनेक्ट होके बनाएगा एक कॉइल. ठीक है. दिस इज द कॉन्सेप्शन ऑफ कंडक्टर, टर्न एंड कॉइल. सो कॉइल मेड आउट ऑफ टर्न, सीरीज कनेक्टेड टर्न, टर्न मेड आउट ऑफ सीरीज कनेक्टेड कंडक्टर. नाउ इन ए डीसी मशीन दो कंडक्टर विल बी ऑलवेज अंडर ऑपोजिट पोल. हम लोग एलिमेंट्री डीसी मशीन पे देखे थे कि अगर बाहर दो पॉइंट में हमको ईएमएफ को एडिशन करना है, राइट, बीएलपी टू बीएलपी, देन एसेंशियली इधर अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा सो इधर ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए. सो मतलब क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं. सो अगर दिस कंडक्टर इज अंडर इन पोल, इट शुड बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस पोल. So this is the second point. Second point. First write it down. So this is the definition of conductor. Now let me write the definition of turn. When two or more conductor is connected in series in such a way that EMF induced in that conductors are additive in nature, then it is called a turn. So this is turn. Two or more conductor for a single turn एक कंडक्टर होगा, फॉर मल्टी टर्न मोर कंडक्टर हम लोग करेंगे. सो टू मेक ए सिंगल टर्न ऑल्सो हम लोग एक से ज़्यादा कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं. मतलब सपोज हमने ऐसे 3 कॉपर वायर लेंगे, देन ऐसे कनेक्ट कर देंगे. सो एक से ज़्यादा हम लोग कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं, सर नो. एंड देन टर्न्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज टू मेक द कॉइल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टर्न.
Then what is the definition of coil? Coil is nothing but when between the commutator segment two or more turns will be connected in series, then it will be referred as a coil. So what is the definition of coil? When between commutator segment वन, मतलब सिंगल टर्न कॉयल भी तो हो सकता है ना. सो 1 2 3 और मोर numbers of turn will be connected in series, then it is called a coil. So coil can be single turn coil, double turn coil और मल्टीपल टर्न coil अकॉर्डिंग टू द मशीन डिजाइन हम लोग करेंगे. सो पहले 3 टर्म आपको समझना है. कंडक्टर, टर्न, कॉइल. ठीक है. कंडक्टर मीन्स जहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. ओके. देन कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होकर के क्या होगा? टर्न. देन टर्न सीरीज में कनेक्ट होकर के होगा कॉइल. एंड देन ऐसे कॉइल को हम लोग प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड इट विल प्रोड्यूस द वाइंडिंग. सो पहले कंडक्टर, देन टर्न, देन कॉइल, देन वाइंडिंग. सो याद रखना, फॉर ए फुल पिच कॉइल एक कंडक्टर फॉर ए टर्न एक कंडक्टर अगर एन पोल के अंदर होगा तो दूसरा कंडक्टर एस पोल के अंदर होना चाहिए. सो ठीक है. नाउ फॉर ए मल्टीपल टर्न कॉइल, मतलब इधर 3 टर्न कॉइल. सो 3 टर्न कॉइल के लिए कितना कंडक्टर है? 3 कंडक्टर इधर, 3 कंडक्टर इधर. सो दैट इज वाई. तो इधर हमको क्या बोलना होगा? मतलब अगर सिंगल कंडक्टर होगा तो हम लोग जस्ट बोलेंगे कंडक्टर. सो अगर सिंगल कंडक्टर नहीं होगा इन ए कॉइल, देयर मे बी मोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स. सो इन द कॉइल हम लोग इन ए सिंगल टर्न हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, लेकिन इन ए कॉइल जो एक साथ में कंडक्टर होगा उसको हम लोग एक साथ में बोलेंगे कॉइल साइड्स. सो कंडक्टर इज नेम्ड एज कॉइल साइड इन ए कॉइल. गॉट माय पॉइंट? मतलब सिंगल टर्न के लिए जहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इफेक्टिव लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर सिंगल टर्न के लिए. लेकिन अगर कॉइल के लिए हम लोग बोलेंगे जहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो एक कंडक्टर तो नहीं हो सकता है ना, मतलब एक से ज़्यादा कंडक्टर हो सकता है. तो इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कॉइल साइड. सो कॉइल साइड इज नथिंग बट द कंडक्टर और कंडक्टर्स. गॉट माय पॉइंट? नाउ दिस कॉइल can be a full pitch coil or can be a short pitch coil. in DC machine हम लोग full pitch coil यूज़ करेंगे. what is that? pole pitch we will explain. just after this we will explain. so can I erase this? So the basic procedure of any armature winding is we have to start from conductor. We have to know what is conductor. So if I summarize,
देन कुछ ऐसे लिखना होगा कि पहले होगा कंडक्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर, वेयर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस। Then conductors are series connected and it will make a turn. Okay, then the turns will be connected in series and it will make coil. Okay, अगर एक ही टर्न रहेगा देन हम लोग बोलेंगे सिंगल टर्न कॉयल, एक से ज़्यादा होगा तो मल्टीपल टर्न कॉयल। सो कॉयल कैन बी single turn or multiple turn. Then the coils when arranged according to the rule, मतलब लैप वाइंडिंग के लिए एक रूल होगा, वेव वाइंडिंग के लिए एक रूल होगा, फ्रॉग लेग वाइंडिंग के लिए अलग सा रूल होगा। सो अकॉर्डिंग टू द रूल के मुताबिक कॉयल को अगर अरेंज करेंगे अलोंग द पेरीफेरी ऑफ आर्मेचर, देन इट विल बी कॉल वाइंडिंग। नाउ इन ए हेटेरोपोलर मशीन दो टाइप का वाइंडिंग हो सकता है, रिंग और ड्रम। ओके, नाउ suppose this is my armature. Okay, this is my armature. Can you imagine, इधर मेरा कम्यूटेटर कनेक्टेड था एंड इधर था सैफ्ट। नाउ एक्चुअली वाइंडिंग कैसे प्लेस होगा, दिस 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 देन कम्यूटेटर के साथ। जस्ट इमेजिन दिस, वाइंडिंग कैसे होगा, एक्चुअली दिस देन कनेक्टर ओवरहैंग पोर्शन, कंडक्टर अगेन ओवरहैंग पोर्शन। सो इन ए कॉयल और इन ए टर्न कंडक्टर के साथ देयर विल बी कनेक्टर और ओवरहैंग पोर्शन। नाउ सपोज दिस इज टू कंडक्टर, so this is conductor, this is one connector, this is another connector, and here it is connected with two adjacent commutator segment. Now this is the back side of DC machine, and जहाँ पे commutator होगा, जो साइड में commutator होगा that will be front side. So if it is A, B, C, D, then this AD is nothing but back connector, and BC मतलब this and this is called front connector. Got my point? क्यों front connector? क्योंकि front side of armature में है। क्यों connector? क्योंकि दो कंडक्टर को कनेक्ट कर रहा है। इनका काम क्या है, जस्ट कनेक्ट करना। इधर क्या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, नो। कहाँ पे होगा, इन द कंडक्टर। कंडक्टर डेफिनेशन ही है ये। सो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर वाला जो डेफिनेशन था इन द मटेरियल साइंस, इधर कंडक्टर मतलब सभी कंडक्टर होता है, लेकिन इन आर्मेचर वाइंडिंग बाय द टर्म कंडक्टर और फॉर ए कॉयल साइड हम लोग मीन करेंगे द पोर्शन और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द टर्न जहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, ना हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड एज ए रेफरेंस लेंगे। सो सपोज दिस इज वन टर्न, सो इट इज लेफ्ट साइड, इट इज राइट साइड। सो दिस कंडक्टर इज कॉल्ड लेफ्ट कंडक्टर। जस्ट अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। लेफ्ट में है तो लेफ्ट कंडक्टर, और लेफ्ट साइड को हम लोग रेफरेंस लेंगे। सो इट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड फर्स्ट कंडक्टर, और
This is the beginning or starting, so it is also called beginning or starting conductor. There are several names, so ये सब नेम यूज़ करके हम लोग बोलेंगे इन द वाइंडिंग डायग्राम हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, बिगिनिंग और स्टार्टिंग कंडक्टर. Now this side it will be right sided conductor or right conductor, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड कंडक्टर और एंड कंडक्टर. अगर सिंगल टर्न नहीं हो करके अगर कॉयल होगा, इन दैट केस हम लोग बोलेंगे लेफ्ट कॉयल साइड, फर्स्ट कॉयल साइड, स्टार्टिंग कॉयल साइड, बिगिनिंग कॉयल साइड. सिमिलरली राइट कॉयल साइड, सेकेंड कॉयल साइड और एंड कॉयल साइड. गॉट माई पॉइंट. कंडक्टर इज डिफाइंड फॉर ए सिंगल टर्न, लेकिन मल्टीपल टर्न कॉयल के लिए अगर सिंगल टर्न कॉयल होगा देन सेम हम लोग कंडक्टर बोल सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल टर्न कॉयल होगा मतलब ऐसे अगर एक से ज़्यादा अगर कंडक्ट मतलब टर्न रहेगा, इन दैट केस कंडक्टर की बजाय हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ कॉयल साइड. Then similar, this is left side, left coil side, right coil side, beginning coil side, end coil side, starting coil side, starting coil side, end coil side, first coil side, second coil side. हम लोग लेफ्ट साइड रेफरेंस लेंगे. दिस इज ए कन्वेंशन ओनली, मतलब आप लोग राइट साइड पे रेफरेंस ले सकते हो, बट लेफ्ट साइड लेंगे हम लोग करेंगे तो समझने में आसानी होगा. ठीक है. So is there any confusion regarding the conductor, turn and coil? So we will start from conductor. Conductor will be placed in armature slot. Okay. Then conductor series में connected होगा, make turn. Turn series में connected होगा and will make coil. And then coils will be arranged throughout the periphery of armature according to the rule. Then it will be called armature winding. So what is armature winding? समझ में आ गया? Okay. Just clear your concepts. ठीक है, up to this clear? Now हम लोग डिस्कस करेंगे the pitches. Okay. Am I missing something? No, I think everything is clear. So can I erase it? Now in armature there are pole pitch, coil pitch, front pitch, back pitch, resultant pitch, commutator pitch, average pitch. So 1 2 3 4 5 6 7 अप्रॉक्सीमेटली 7 पिचेस के बारे में डिस्कस करना है. शो पिचेस. नाउ सपोज हियर इज नॉर्थ पोल, 2 पोल मशीन. ओके. एंड हियर इज साउथ पोल. मतलब अगर टॉप व्यू देखेंगे तो सपोज दिस इज माय आर्मेचर. ओके. देन दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. सो 1 2
So suppose total 18 numbers of conductors are there. So total 18 numbers of conductor are there. So 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. Now distance between the S pole and N pole. Distance between the two opposite pole is called pole pitch. Let me repeat again. Distance between the two opposite pole from here to here, this distance is called pole pitch. Now why pitch? हम लोग तो बोल सकते थे ना कि पोल डिस्टेंस, इंटर पोल डिस्टेंस, ऐसे मॉडर्न स्टाइलिश टर्म तो हम लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन पिच क्यों हम लोग यूज़ किए? क्योंकि दिस इज नॉट ए रियल डिस्टेंस. मतलब सपोज आर्मेचर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, देन 2 पाई आर इज द पेरीफेरी, देन हाफ ऑफ द पेरीफेरी मतलब हाफ पाई आर, एंड देयर इज एयर गैप मतलब 1 to 6 मिलीमीटर एयर गैप होता है. सो सपोज 1 to 6 millimeter, so we can assume this is 3 millimeter, this is 3 millimeter. Then armature from this to this pi r, so pi r हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्लस दिस 3 मिलीमीटर, दिस 3 मिलीमीटर अगर ऐड करेंगे तो एक्चुअल डिस्टेंसेस बिटवीन दिस टू पोल कैन बी फाउंड. गॉट माई पॉइंट और नॉट? एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हम लोग हमेशा क्या इमेजिन करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इस टाइप का डिस्टेंस. ओके, नाउ हियर हम लोग सेंटीमीटर मिलीमीटर पे डिस्टेंस नहीं मेजर करेंगे. वी विल इंट्रोड्यूस ए न्यू टर्म दैट इज पिच. पिच मतलब डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर. मतलब बिटवीन एस एंड एन पोल कितना आर्मेचर कंडक्टर होगा. सपोज टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स आर 18 हियर, टोटल नंबर ऑफ पोल इज 2, सो दो पोल के बीच में टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स आर 9. सो 9 इज द पोल पिच. सो इधर हम लोग डिस्टेंस ना तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर के टर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे, बट नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के टर्म पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. सो एसेंशियली पिच is represented by the numbers of armature conductor. So it is represented by number of armature conductor or conductors. Got my point? That is why हम लोग नहीं बोलेंगे इंटरपोल डिस्टेंस, नहीं बोलेंगे. हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज पोल, सॉरी दैट इज पिच. पिच मतलब where the distances are measured in terms of armature conductor. So pole pitch, coil pitch, front pitch सभी distance होगा in the term of armature conductor. Now if total number of armature conductor is Z, total number of armature conductor is Z and total number of pole is P. So P is total number of pole, not pair of pole. Okay, total number of pole, दो pole है, एक S एक N. So then pole pitch so pitch को हम लोग कैपिटल Y से डिनोट करेंगे. So pole pitch Y, capital Y, suffix P, P for pole, Y for pitch, YP is nothing but Z by P. So this is number 1, pole pitch. Is it clear to you? Now suppose total number of armature conductor is 56.
and total number of poles are 4. So heteropolar machine 4 pole मतलब north south alternative north south. Heteropolar means rotating part will face alternating poles. होमोपोलर मतलब एक ही पोल फेस करेगा. होमोपोलर मतलब एक ही पोल फेस करेगा. सो सपोज दिस इज एस, दिस इज एन, दिस इज एन. सो ऐसे मेरा अगर आर्मेचर रोटेट करेगा तो हमेशा देखो एन ए भी एन, आर्मेचर रोटेट कर रहा है लेकिन पोल एक ही पोल फेस कर रहा है, मतलब नीचे होगा एस, ऊपर में होगा एन. लेकिन इधर आर्मेचर का एक कंडक्टर, सपोज दिस कंडक्टर 1, ऐसे अगर रोटेट करेंगे सो हमेशा एन इधर भी आएगा तो एन फेस करेगा. लेकिन इधर एक कंडक्टर एक बार एन एस. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कम्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इधर कम्यूटेशन इज रिक्वायर्ड. बट हियर सो मेनी स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड and this is very much costly and inefficient. So nowadays हम लोग होमोपोलर मशीन यूज़ नहीं करते, rather हम लोग यूज़ करेंगे हेटेरोपोलर मशीन. सो इन ए हेटेरोपोलर मशीन ऐसे 4 पोल होगा. नाउ इधर था 18 नंबर्स ऑफ कंडक्टर. दिस इज द टॉप व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू. कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज माई आर्मेचर, दिस ऐसे कंडक्टर है. ओके, सो दिस इज माई टॉप व्यू. सो ऐसे कंडक्टर को स्लॉट में हम लोग प्लेस करेंगे. सो इन द फ्रंट साइड हम लोग देखते हैं. सो ऐसा होगा ना, ऐसा कंडक्टर होगा. नाउ दिस इज पोल 1, दिस इज पोल 2, लाइक दिस. सो टोटल 56 होगा. तो पोल पिच इज नथिंग बट 56/4 मतलब 40. अंडरस्टैंड? नाउ द सेकेंड इज कॉइल पिच. So can I erase this? I will not provide note. You just please write down, क्योंकि उतना टाइम नहीं है. इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग नोट, उनके बजाय हम लोग ये भी कर सकते हैं कि माइंड में प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर सकते हैं. सो आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल. यस और नो? राइट. देन कॉइल पिच. Then the second is coil pitch. So coil can be single turn or it can be multi turn. And though coil side, so this is a single turn coil or it can be multiple turn also, like this. Okay, now this will be under N pole and this should be under S pole. Okay, now if it is a 2 pole machine, मतलब understand, this side this ऐसे इंसर्ट करेगा, देन बैक एंड कनेक्टर ऐसे होकर के इधर से निकालेगा, मतलब ऐसा होगा. कैन यू इमेजिन दिस? ऐसा. दिस विल बी प्लेस्ड ऐसे. एक कॉइल साइड विल बी अंडर एन पोल, एक होगा अंडर एस पोल. ओके, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पोल्स एंड कंडक्टर हम लोग ऐसे रूल सेटअप करेंगे. बट इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट कि एक कॉइल का 2 साइड विल बी अंडर डिफरेंट पोल, ताकि resulted EMF here, resulted EMF can be additive in nature. Got my point? अगर डिफरेंट पोल के अंदर नहीं रखेंगे तो इधर क्या होगा? BLV माइनस BLV हो जाएगा, सो 0. Now these types of coils is called full pitch coil. Now in AC machine हम लोग क्या करेंगे? decrease the distance like this, और एग्जैक्टली पोल के अंदर नहीं रख के थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पिच
और ओवर पिच्ड, और एक साथ में बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पिच। सो इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पिच। फ्रैक्शनल पिच्ड कॉयल मतलब माई कॉयल पिच मतलब दो कॉयल साइड के बीच में जो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। सो कॉयल पिच मतलब दो कॉयल साइड के बीच में जो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। दो कॉयल साइड, सिंगल टर्न कॉयल मतलब दो कंडक्टर के बीच में, मल्टी टर्न कॉयल तो दो कॉयल साइड के बीच में जो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नॉट सेंटीमीटर मीटर डिस्टेंस। गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड कॉयल पिच। सो फुल पिच कॉयल मतलब कॉयल पिच इज इक्वल टू YP पोल पिच। ओके, सो फुल पिच मतलब कॉयल पिच is nothing but pole pitch, and fractional pitch मतलब coil pitch greater than pole pitch हो सकता है। मतलब दिस greater than pole pitch, पोल इधर था, थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया डिस्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड ओवर पिच्ड कॉयल। सो दिस इज कॉल्ड ओवर पिच्ड कॉयल। और थोड़ा सा डिस्टेंस कम ले सकते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड शॉर्ट पिच्ड कॉयल। शॉर्ट एंड ओवर, अंडरस्टूड है ना। नाउ इन AC मशीन हम लोग यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल पिच कॉयल, इन DC मशीन हम लोग यूज़ करेंगे फुल पिच कॉयल। क्यों हम लोग फ्रैक्शनल पिच यूज़ करेंगे? टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स। सो हम लोग AC मशीन पे देखेंगे इन द नेक्स्ट सेमिस्टर। सो कॉयल पिच मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉयल साइड्स इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। शुड आई राइट इट? डिस्टेंस बिटवीन कॉयल पिच मतलब डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। कौन सा डिस्टेंस? आर्मेचर कंडक्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन टू कॉयल साइड इज नथिंग बट कॉयल पिच। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? सो इज कॉल्ड distance in terms of armature conductor between two coil side is called coil pitch. Now there is a second name for coil pitch, that is it is also called as coil span. So दो नेम है, coil pitch और coil span. So ये वाला हो गया। Now front pitch, so आप लोग क्या जानते हो? This is front end connector, this is back end connector. Okay, so let me draw again. Time थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, but we have to understand everything clearly, क्योंकि बाद में रिवाइज करने का ज़रूरी नहीं होगा in that case. So front pitch, सो फ्रंट पिच को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग सम रेफरेंस वाइंडिंग टेक्निक। मतलब सपोज टेक लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग अगर होगा तो सेम। तो सपोज वाइंडिंग हम लोग ऐसे कुछ करेंगे, दिस इज वन कॉयल, लेट मी टेक सिंगल टर्न कॉयल, देन सेकेंड कॉयल ऐसे कनेक्टेड होगा, let me use blue pen for second coil. Okay,
okay. Then similarly third coil होगा. Now ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ it will be connected, okay. So this is one coil, सिंगल टर्न coil हम लोग लेंगे. और अगर मल्टी टर्न होता मतलब सपोज फोर टर्न coil, so black color, four black color will be there, four blue color will be there, but the conception will be same. सिंगल टर्न coil के लिए हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, मल्टीपल टर्न coil के लिए हम लोग बोलेंगे coil साइट, ठीक है. now see it clearly. जिधर कम्यूटेटर होगा that is nothing but front side F and this is back side. Now distance between first and second conductor, distance between this and this, first or second or starting end, left right, distances between first conductor and second conductor of a coil is called बैक पिच. क्यों बैक पिच? क्योंकि डिस्टेंस हम लोग बैक साइड से मेजर करेंगे. ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर फ्रंट साइड से मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे? डिफ़िकल्ट, यस, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा विंडिंग फ्रंट साइड पे होगा. सो ये वाला डिस्टेंस हम लोग बैक साइड से मेजर करते. सो कैन यू इमेजिन दिस? सो सपोज कैसे दिखाएंगे? सपोज दिस इज द आर्मेचर. सो ऐसे कॉयल है, सो दिस इज द आर्मेचर, ओके. ऐसे कॉयल होगा, देन कॉयल ऐसे कनेक्टेड होगा. सो कॉयल का दो साइड और फर्स्ट कॉयल साइड एंड सेकेंड कॉयल साइड और स्टार्टिंग कॉयल साइड एंड एंड कॉयल साइड और राइट और लेफ्ट कॉयल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड बैक पिच. बैक पिच डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? हमेशा इन द टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर ओनली, क्योंकि पिच नॉट डिस्टेंस, ओके. सो फ्रंट पिच इज नथिंग बट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन द स्टार्टिंग और दूसरा नेम बिगिनिंग. बिगिनिंग स्पेलिंग ठीक से लिखना. और लेफ्ट कॉइल साइड एंड बिगिनिंग स्पेलिंग ठीक से लिखना. बिगिनिंग NING, beginning, left and end or right or second coil side. Coil sides within bracket for multi-turn coil. और हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स फॉर सिंगल टर्न कॉइल इज कॉल्ड बैक पिच. सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले बैक पिच, ओके. सॉरी, हम लोग पहले बैक पिच डिस्कस कर रहे हैं, बैक दिस, देन फ्रंट पिच करेंगे. सो इज कॉल्ड back pitch. So let me repeat again. Suppose this is a coil, single turn coil. It can be multiple turn coil also. Then distance between first and second conductor or first coil side, second coil side or beginning coil side, end coil side or left coil side, right coil side or left conductor, right conductor
बिगिनिंग कंडक्टर, एंड कंडक्टर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो कि हम लोग मेजर करेंगे आर्मेचर कंडक्टर के रिस्पेक्ट में फ्रॉम द बैक साइड. सो इट इज कॉल्ड बैक पिच और इट इज डिनोटेड बाय YB. सो लिख सकते हो, इट इज measured from the back side of armature. It is measured from the back side of armature. Show the name back pitch. Show the name is back pitch. सो इनिशियली हमने हेडिंग गलत दिए थे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, जस्ट करेक्ट इट. सो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, इट शुड बी कंडक्टर्स बिटवीन द स्टार्टिंग और बिगिनिंग और लेफ्ट और फर्स्ट एंड एंड और राइट और सेकेंड कॉयल साइड्स फॉर मल्टीपल कॉयल, multi-turn coil or conductors for single turn coil is called back pitch, denoted by YB, and it is called back pitch because it is measured from the back side of the armature. Got it? Now front pitch. So front pitch क्या है? Now end of one coil, this end of one coil and beginning of second coil, end of one coil and the beginning of second coil, or right conductor or coil side of one coil and left conductor or coil side of one coil, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है that is called front pitch. क्यों front pitch? क्योंकि it is measured from the front side. So this is called back pitch YB. This is called front pitch YF. So distance in terms of armature conductor between the starting, beginning, first or left of one coil of सेम डेफिनेशन. सो जस्ट इधर हम लोग ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ वन कॉयल एंड राइट और सेकेंड कॉयल साइड ऑफ अनदर कॉयल इज कॉल्ड फ्रंट पिच. सो दिस इज फ्रंट पिच. क्या एक बार और फिर से लिखेंगे? सो लिखते हैं फिर से. सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ वन कॉयल एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट. सो हम इन ब्रीफ लिखते हैं, डिस्टेंसेस इन द टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन एंड of one coil, between end of one coil and beginning of the next. So this is denoted by YF. And why the name front pitch? क्योंकि फ्रंट साइड से हम लोग देखते, फ्रंट साइड जिधर कम्यूटेटर होगा आर्मेचर के साथ, जिधर कम्यूटेटर कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट साइड एंड दिस इज कॉल्ड बैक साइड. सो फ्रॉम दिस and this clear. Now what is resultant pitch? What is resultant pitch from this diagram? RP, resultant pitch. Okay,
So what is resultant pitch? Distance between starting of two coils, मतलब from this to this, between black and blue, this is starting of first coil, this is starting of second coil. ये पहला कॉयल का स्टार्टिंग है, सेकेंड कॉयल का स्टार्टिंग है, दोनों स्टार्टिंग कॉयल के बीच में जो डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट पिच, is nothing but here YB minus YF. So in this case distance is YB minus YF. वेव वाइंडिंग में YB प्लस YF होगा, हम लोग देखेंगे. जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर between starting of one coil and the starting of next coil. ओके, अगर वाइंडिंग ऐसे करेंगे, वेव वाइंडिंग कुछ ऐसा होता है. सो हियर दिस इज बैक पिच, दिस, देन end of second and beginning of the first of the next. So this is front pitch. Then what is resultant pitch? दोनों का beginning का distance. So this is beginning of first coil, this is beginning of second coil. So इधर होगा YB plus YF, exactly opposite. Got my point or not? This is back pitch. कॉयल वन का दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस फ्रॉम द बैक साइड हम लोग देखेंगे. सो इट इज़ बैक पिच. नाउ कॉयल वन का एंड कंडक्टर सेकेंड कंडक्टर एंड कॉयल टू का बिगिनिंग कंडक्टर और फर्स्ट कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस एंड बिगिनिंग, पहला उनका एंड, सेकेंड जो कॉयल है उनका बिगिनिंग, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज YF. सो इधर रिजल्टेंट मतलब दोनों का बिगिनिंग, दोनों का फर्स्ट, दोनों का स्टार्टिंग कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस. सो दिस इज फर्स्ट कॉयल का स्टार्टिंग, सेकेंड कॉयल का स्टार्टिंग. सो YB प्लस YF. सो इधर YB माइनस YF. सो दिस इज रिजल्टेंट पिच. सो रिजल्टेंट पिच हो गया. ना हम लोग देखेंगे एवरेज पिच. सो एवरेज पिच इज नथिंग बट बैक पिच प्लस फ्रंट पिच. सो आप लोग कैपिटल B कैपिटल F दे सकते हो और स्मॉल b स्मॉल f दे सकते हो. सो डिनोट अकॉर्डिंग टू योर विश करना. सो एवरेज मतलब क्या होता है? दोनों डिस्टेंस का एवरेज मतलब क्या? एडिशन बाय नंबर ऑफ डिस्टेंसेस. सो इधर भी सेम होगा. एवरेज मतलब क्या? दिस प्लस दिस बाई 2. दिस इज कॉल्ड एवरेज पिच. क्यों हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि फॉर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ वाइंडिंग पिचेस का वैल्यू डिफरेंट होगा, फॉर्मूला डिफरेंट होगा, रूल डिफरेंट होगा. अकॉर्डिंगली हम लोग वाइंडिंग करेंगे. मतलब आर्मेचर इंड्यूस EMF, कौन मशीन पे करंट ज़्यादा होगा, कौन मशीन पे आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा, सारी सब कुछ डिपेंड करते हैं पिचेस का वैल्यू के ऊपर. मतलब पिच क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, पिच वेरी करके हम लोग वाइंडिंग वेरी करते हैं. सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर DC मशीन. गॉट माई पॉइंट? नाउ अप टू दिस क्लियर और नॉट? एवरेज पिच हो गया. नाउ फाइनली हमको देखना होगा व्हाट इज कम्यूटेटर पिच. नाउ टू एंड ऑफ ए कॉइल. So this is one coil black, this is one end, this is second end. और सेकेंड कॉइल के लिए दिस इज वन, दिस इज सेकेंड. मतलब एक कॉइल का
सिंगल टर्न कॉयल और मल्टीपल टर्न कॉयल, मल्टीपल टर्न कॉयल के लिए भी सेम होगा। ऐसे मल्टीपल टर्न शो एक्चुअली लास्ट में दो एंड मिलेगा एंड दिस एंड्स आर सोल्डर्ड, ज्वाइन करते जोड़ते हैं किसके साथ, आर्मेचर के, सॉरी कम्यूटेटर के साथ, ये सुनो कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ, ठीक है। देन टू एंड, दिस टू एंड फ्रंट कंडक्टर, सॉरी बिगिनिंग कंडक्टर एंड एंड कंडक्टर, दोनों से दो एंड आएगा, कम्यूटेटर पे ज्वाइन होगा। देन कितना सेगमेंट, मतलब कितना सेगमेंट बाद ज्वाइन होगा, दैट इज डिफाइंड बाय कम्यूटेटर पिच। सो लेट मी डिस्कस इट मोर केयरफुली। सो पोल पिच, कॉयल पिच, फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच, एवरेज पिच, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहा था, आर्मेचर कंडक्टर्स, कितना नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होगा। सिमिलरली कम्यूटेटर पिच विल बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स। सो डिस्टेंसेस इन टर्म ऑफ आर्मेचर कंडक्टर था, इधर क्या होगा, distances in terms of commutator segment. So this is the distance in terms of commutator segment. Okay, कौन सा distance? It is the distance between two ends of a coil connected to commutator. Let me clear this. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, let me clear this. Suppose there is lap winding, there is wave winding. लैप वाइंडिंग में दो टाइप का होता है, प्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव। देन प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स हो सकता है, डुप्लेक्स हो सकते हैं, ट्रिप्लेक्स हो सकते हैं, क्वाड्रिप्लेक्स हो सकता है, मल्टीप्लेक्स हो सकता है। सिमिलरली रेट्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका कम्यूटेटर पिच चेंज होगा। इन दिस डायग्राम सपोज दिस इज कम्यूटेटर सेगमेंट 1 2 3 4 5 6। राउंड कम्यूटेटर था, राउंड कम्यूटेटर को हम काट के खोल दिए, स्ट्रेच कर दिए। नाउ समथिंग लाइक दिस। देन सपोज टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स आर 6। देन हम लोग खोल दिए, 6 नंबर ऑफ स्लॉट्स आर देयर। स्लॉट्स हम लोग नहीं बोलेंगे, सेगमेंट्स आर देयर। नाउ हियर one end is connected to segment 2, another just adjacent to that, मतलब at segment 3। सो इधर कम्यूटेटर पिच होगा 1। गॉट माई पॉइंट और नॉट? फॉर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, इफ इट इज ए डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग देन ए वाला कनेक्ट होगा विथ दिस, मतलब विथ नंबर 4 सेगमेंट। सो दो में कनेक्ट हो रहा है दिस, 4 में कनेक्ट हो रहा है दिस। सो मतलब कम्यूटेटर पिच कितना होगा 2। इफ इट इज ए ट्रिप्लेक्स देन 3, इट इज ए क्वाड्रप्लेक्स देन 4। इफ इट इज ए वेव वाइंडिंग देन एवरेज पिच जितना होगा कम्यूटेटर पिच उतना ही होगा। एंड इफ इट इज ए रेट्रोग्रेसिव मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर वाइंडिंग करेंगे तो प्रोग्रेसिव, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर वाइंडिंग करेंगे सो रेट्रोग्रेसिव। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सपोज क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करेंगे, सो लेफ्ट टू राइट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर करेंगे तो एक होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन करेंगे तो दूसरा होगा। ऐसे कॉन्सेप्शन होता है। सो प्रोग्रेसिव मतलब
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। मतलब सपोज 1, दिस इज बिगिनिंग, दिस इज एंड। सो प्रोग्रेसिव मतलब सपोज बिगिनिंग एंड एंड, and this is commutator segment, suppose 1 and 2, this is beginning and this is end। so progressing मतलब beginning के बाद end connected होगा। retrogressive मतलब beginning connected होगा इधर होगा beginning इधर कनेक्ट होगा end। समझ में आ जाएगा? when डिस्कस करेंगे तो इट विल बी क्लियर। सो प्रोग्रेसिव के लिए लेफ्ट टू राइट हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। सो कम्यूटेटर पिच विल बी +1। रेट्रोग्रेसिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट विल बी -1। ओके, सो कम्यूटेटर पिच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। बाकी जो सारी पिचेस है दिस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, and commutator pitch is defined in terms of commutator segment। उधर conductor इधर segment। got my point or not? so this is all about the terminologies। okay, clear everything? so पहले हम लोग डिस्कस किए what is a conductor, what is a turn coil and what is called a winding। okay, then pitches, there are pole pitch, coil pitch, front pitch, back pitch, resultant pitch, average pitch, and at last there is commutator pitch। now we will start armature winding। so in the beginning एक बेल्जियम साइंटिस्ट था, द नेम वाज आई थिंक जेड ग्रैनी, और पूरा नेम था कुछ जेनोब ग्रैनी, ऐसा कुछ नेम था। ओके, तो रिंग टाइप डीसी डायनामो जो कि एक डीसी जनरेटर है, डीसी मशीन है, वो पहले मैन्युफैक्चर किए थे। सो उधर कुछ सिंपल स्ट्रक्चर था क्योंकि टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम उतना प्रोग्रेस नहीं किए थे। सो उनका मशीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, टू के सिंपल रिंग something like toroid, and suppose there is a pole साउथ नॉर्थ परमानेंट मैग्नेट पोल, एंड हियर हम लोग ऐसे लाइक ए रिंग कंप्लीट द पेरीफेरी हम लोग जो हम लोग का वायर होगा रैप करेंगे, लपेटना होगा। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रैमी रिंग वाइंडिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी वाज नॉट डेवलप्ड एंड इट वाज इन ए एक्सपेरिमेंटल स्टेट। सो इधर बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। मतलब देखो, सपोज इन दिस पोजिशन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज अंडर द पोल, बट दिस एंड दिस इज नॉट अंडर द पोल। सो बहुत ही कम है ना, पोल के अंदर कितना कॉयल है, 1 to 1, बाकी सारी कॉयल आउट ऑफ द पोल, मतलब पोल के इन्फ्लुएंस पे नहीं है। सो इंड्यूस ईएमएफ डेफिनेटली कम प्रोड्यूस होगा। सो देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज। सो इट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप का हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड इट इज कॉल्ड ग्रैमी। नेम था कुछ आई थिंक जेनोव, बेल्जियम साइंटिस्ट था, जेनोव ग्रैमी आई थिंक, एक बार देखना पड़ेगा। जेनोव ग्रैमी ऐसा कुछ नेम था। दैट इज व्हाई द नेम ग्रैमी रिंग वाइंडिंग। ओके, नाउअडेज इट इज नॉट यूज्ड। सो वीडियोस कर देते, ठीक है।
So we are discussing armature winding for a heteropolar machine. हेटेरोपोलर मशीन के लिए दो टाइप की वाइंडिंग हो सकता है, एक ग्रैमी रिंग वाइंडिंग एंड दूसरा टाइप इज ड्रम टाइप वाइंडिंग। ये देखने में रिंग के जैसा है ना, एक सर्कुलर टॉरॉइड जैसा स्ट्रक्चर, देन ऐसे हम लोग वायर को रैप करेंगे। शो ड्रम टाइप वाइंडिंग। इन मॉडर्न डेज हम लोग ड्रम टाइप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। ड्रम टाइप मतलब सपोज दिस इज माई कम्यूटेटर, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, and here is commutator segment. Now from this segment from this segment, suppose so armature or think this is a commutator. Okay, now here armature is there, हम लोग armature नोट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। सो armature slot में ऐसे रिंग ऐसे कंडक्टर लाइक दिस ऐसे कनेक्टेड होगा। 1 सेकेंड कॉयल, थर्ड कॉयल, फोर्थ कॉयल, ऐसे कंप्लीट द पेरीफेरी ऑफ आर्मेचर। अगर वायर को हम लोग देखेंगे तो कुछ ड्रम के जैसा वाइंडिंग्स लगेगा ना, मतलब सपोज देयर इज नो आर्मेचर, आर्मेचर इज सिलिंड्रिकल और ड्रम शेप। सो मेरा वाइंडिंग भी एक स्लॉट से दूसरा स्लॉट में कनेक्ट करके टोटल अगर कंप्लीट करेंगे तो इन दैट केस वाइंडिंग भी देखने में कुछ ड्रम के जैसा होगा ना। सो दिस इज कॉल्ड ड्रम वाइंडिंग। इन मॉडर्न मशीन हम लोग ड्रम वाइंडिंग करते हैं, क्योंकि वाइंडिंग ऑल ओवर अगर देखेंगे तो एज ए सिलेंडर और ड्रम के जैसा लगेगा। सो इट इज कॉल्ड ड्रम वाइंडिंग। नाउ दिस ड्रम वाइंडिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। It can be lap winding, it can be wave winding or frog leg winding. Now lap winding essentially classified into 2 types, progressive or it can be retrogressive. तो हम लैप के लिए अभी दिखाएंगे, वेव के लिए सेम होगा, सेम क्लासिफिकेशन। ओके, सो प्रोग्रेसिव कैन बी सिंगल लेयर एसएल और कैन बी मल्टीपल लेयर और डबल लेयर, मतलब हम लोग डबल लेयर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली रेट्रोग्रेसिव भी सिंगल लेयर हो सकता है, डबल लेयर हो सकता है। नाउ सिंगल लेयर कैन बी सिंप्लेक्स, व्हाट इज ए सिंप्लेक्स हम लोग देखेंगे, और मल्टीप्लेक्स। सिमिलरली डबल लेयर भी हो सकता है सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स, इधर भी सिंप्लेक्स मल्टीप्लेक्स, सिंप्लेक्स मल्टीप्लेक्स। सेम इज ट्रू फॉर वेव ऑल्सो। सो आई एम नॉट राइटिंग हियर, वेव वाइंडिंग देखेंगे तो तब लिखेंगे फिर से एक बार। सो लैप वाइंडिंग मतलब कॉयल 1 एंड कॉयल 2 अगर देखेंगे तो देखकर ऐसा लगेगा कि कॉयल 2 इज ओवरलैपिंग विथ कॉयल 1, दैट इज व्हाई द नेम लैप वाइंडिंग। हम लोग वाइंडिंग डायग्राम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड वेव वाइंडिंग
फर्स्ट कॉयल, सेकेंड कॉयल, थर्ड कॉयल, फोर्थ कॉयल अगर देखेंगे तो एक वेव के जैसा लगेगा। वेव मतलब ऐसे साइनोसॉइडल जैसे होता है ना, वेव शेप, सो वेव के जैसा लगेगा। सो दैट इज वाई द नेम वेव वाइंडिंग। एंड फ्रॉग लेग इट्स स्पेशल टाइप ऑफ वाइंडिंग हम लोग देखेंगे। सो फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग को क्यों हम लोग लैप बोलते, and what is progressive, what is retrogressive, what is single layer, what is double layer, what is simplex, multiplex, duplex, triplex, quadruplex, सारी जो टॉपिक होगा हम लोग एक साथ में डिस्कस करेंगे। एंड आई वांट टू मेंशन वन थिंग दैट इट इज़ वेरी इजी, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। सो वी हैव टू कंप्लीट द लैप वाइंडिंग एटलीस्ट वेरी क्विकली, क्योंकि नहीं तो हम लोग इंड्यूस ईएमएफ और टॉर्क इक्वेशन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास लैप वाइंडिंग, ठीक है। एंड रिमेंबर इन डीसी मशीन it is a closed winding, closed by itself. There is a re-entrancy factor. So single layer lap winding का re-entrancy factor will be 1. So it is not required. I am not discussing that. Just remember कि it will be a closed winding, मतलब it will be closed by itself. If I try to trace the winding, then external circuit जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग कंडक्टर से कंप्लीट विंडिंग होकर के हम लोग वापस आ सकते हैं इन द स्टार्टिंग पॉइंट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सर्किट। समझ में आ रहा है? सो लैप वाइंडिंग से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ग्रैमी रिंग वाइंडिंग यूज नहीं होता है, सो वी विल नॉट डिस्कस इट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय।